सत श्री अकाल। एबीपी ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੋਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਖਤਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਮਾਲ, ਜ਼ੀਰੂਕ, ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਮਨਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਜਦ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਕਰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਮਾਊਂਟਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੋ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਛੋਟੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਗਈ, 1500 ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਜਦ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਸਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਲੰਘੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭੂਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ब्रेक तो बाद स्वागत है। तुहानूं दसदे हां कि भूचाल आउण दी वजह की हुंदी है, की कारण है आखिर धरती दे विच इन्नी ज़्यादा उथल फुथल हुंदी है, उस दे विच की मेन कारण आउंदा। और मन्निया जांदा कि जिहड़ी धरती दे अंदर दो प्लेट्स हुंदियां ने उहनां दे विच आपसी रगड़ हुंदा, ਉਹ रगड़ किवें पैदा हुंदा, किवें जिहड़ी ਇਹ दराड़ आउंदी और जिहड़ी धरती हिलदी है, तुहानूं दिखाउने आ इस रिपोर्ट दे विच। हुण गल करदे हां कि आखिर भूचाल आउंदा किवें है। धरती की पेपड़ी 10 प्लेटां की बनी हुई है, जिस दे विचों कुछ 10 तो 40 मिलीमीटर प्रति साल गति करदियां ने अते कुछ 160 मिलीमीटर प्रति साल गति करदियां ने। जदों दोवें प्लेटां आपस दे विच टकराउंदियां ने तां ओह एक दूसरी दे नाल जुड़ जांदियां ने, पर फिर भी ये प्लेटां निरंतर गति करदियां रहिंदियां ने। गति कारण इन्हां प्लेटां उत्ते इन्ना ज़्यादा दबाव वध जांदा है कि किसी कमज़ोर थां तो यह प्लेट टुੱਟਣ कारण इन्हां प्लेटां विच हिलचुल पैदा हो जाती है ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪੜੀ ਅੰਦਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जेकर रिक्टर स्केल की खोज की गल करिए तो 1935 में दो अमरीकन विज्ञानियों चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ते बेनो गुटेनबर्ग ने की सी। भूचाल की तीव्रता नूं इस स्केल नाल मापिया जाता है। भूचाल की तीव्रता नूं इस स्केल राही 1 तो 9 डिग्री तक मापिया जाता है, पर 9 डिग्री भूचाल की तीव्रता का कोई अंत नहीं है। रिक्टर स्केल नाल भूचाल की तीव्रता नूं मापना पूरी तरह विग्यानक है। इस पैमाने की वरतों नाल भूचाल दीआं तरंगां नूं मापिया जाता है। रिक्टर स्केल की तीव्रता नाल तुहानूं समझाउंदे हां कि किन्नी तीव्रता का भूचाल किन्नी तबाही लिया सकता है। 0 तो 1.9 तीव्रता का भूचाल सिर्फ सिस्मोग्राफ तो ही इसका पता चल सकता है। जेकर रिक्टर स्केल ते 2 तो 2.9 तीव्रता वाला भूचाल की गल करिए तो इस दे नाल धरती का हल्का जिहा कंबना शुरू हो जाता है। इस तो बाद 3 तो लैके 3.9 तीव्रता के भूचाल की गल करिए, इस दे नाल कोई वड्डा वाहन जिवें तुहाडे कोलों लंघ रहा होवे तुहानूं इंज प्रतीत होएगा। उस तो बाद 4 तो 4.9 तीव्रता के भूचाल की गल करिए तो इस दे नाल खिड़कियां दे शीशे टुट सकते हैं ते कंधां उत्ते टंगियां तस्वीरां भी थल्ले डिग सकदियां ने। 5 तो लैके 5.9 तीव्रता का जेकर भूचाल आउंदा तां इस दे नाल भारी समान अपनी थां तो हिल जांदे ने। इस तो बाद 6 तो लैके 6.9 तीव्रता के भूचाल आउण नाल मकान दीआं नीहां तक हिल जांदियां ने ते उपरलियां मंजिलां नूं भारी नुकसान हो सकता है। 7 तो लैके 7.9 तीव्रता के भूचाल की गल करिए तो इस दे नाल इमारतां तक डिग जांदियां ने अते जमीन विच दबे पाइप तक फट जाते हैं। इस तो उपर 8 तो लैके 8.9 तीव्रता का जेकर भूचाल आउंदा तो इस दे नाल वड्डे पुल तक गिर जाते हैं। अखीर 9 जां उस तो वध तीव्रता वाले भूचाल दे नाल पूरी तबाही का मंजर हुंदा है। समुंदर दे विच सुनामी आउण तक का खतरा वध जांदा है। इत्थे वेला एक होर छोटी जी ब्रेक दा। ब्रेक तो बाद गल करांगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान ते भारत विच आए वड्डे भूचाल दी। ब्रेक तो बाद स्वागत है। हुण तुहानूं असीं एक रिपोर्ट दे राहीं दिखाउने आ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ते भारत दे विच आए मुख वड्डे भूचालां दी और उन्हां दे नाल किन्नियां मौतां होईयां सी और किहड़े साल दे विच इह भूचाल आए सन। हुण एक नज़र पा लैने अफगानिस्तान, पाकिस्तान ते भारत विच आए वड्डे भूचालां दे उपर। सब तो पहला गल करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के 31 जनवरी 1991 के 6.4 तीव्रता के नाल भूचाल आए, जिस दे विच करीब 9000 लोगों की मौत हुई। यह भूचाल बदकिस्तान, बगलान, लगमान ते नगरहार इलाके दे विच आया सी। इस तो बाद साल 1998 के
30 ਮਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.6 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 4700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਖਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਲਾਨ ਤੇ ਨਾਹਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦਸੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੇ ਪਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.2 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਗਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ 5.9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ 1934 ਨੂੰ 8.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.6 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ 1934 ਨੂੰ 8.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸਾਮ ਦੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.6 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ 15 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.1 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 30 ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.4 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2001 ਨੂੰ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हिंदू कुछ रीजन है अफगानिस्तान में, वो क्या वजह होती है कि मैक्सिमम टाइम जो है, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स वो एपिसेंटर जो है वो हिंदू कुछ रीजन होता है। और हिंदू कुछ रीजन है क्या, कहाँ है और क्यों होता है? वो बेसिकली जो हमारा जो हिमालयन प्लेट है, इसके सबडक्शन की वजह से स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनते हैं। स्ट्राइक स्लिप का मतलब होता है कि वो प्लेट जो है वो सिर्फ ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जो है मूव कर रहा है, उसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है। मगर जो हमारे हिमालय में है, यहाँ पे सारे के सारे जो फॉल्ट हैं वो रिवर्स फॉल्ट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पुरानी रॉक्स होती हैं वो यंगर रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करती हैं। तो वहाँ पे जितना, जैसे अभी आप हिंदू कुश में जो एरिया में देख रहे हैं, वहाँ पे जनरली जो फॉल्ट का नेचर है, जो प्लेट का जो मोशन है वो स्ट्राइक स्लिप है। या तो वहाँ पे राइट लेटरल फॉल्ट होगा या लेफ्ट लेटरल फॉल्ट होगा। तो ये कई बार बताना मुश्किल होता है, क्योंकि जो छोटे मैग्नीट्यूड, जैसे ये 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो इसमें जनरली क्या होता है, जब 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वो अर्थ की जो सरफेस है उसको रप्चर कर देता है, मतलब जो जमीन की जो जमीन है उसको तोड़ देता है ऊपर तक। तो उस केस में क्या होता है कि हमें बताना थोड़ा ईजी होता है कि किस तरह का ये फॉल्ट का करैक्टर है या किस तरह का उसने बिहेव किया है। मगर इस एरिया में, जो हिंदू कुश का एरिया से मैक्सिमम जो आपको अर्थक्वेक मिलेंगे वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट मिलेंगे। मगर जो हिमालयाज है, हिमालयाज में भी बहुत, जैसे
मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर उसमें भी कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि यहाँ बड़ा अर्थक्वेक आ भी सकता है। मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि कुछ कहते हैं आ सकता है, कुछ कहते हैं नहीं। मतलब अभी भी ये, मगर मैं कहूँगा कि रिसर्च का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अर्थक्वेक का जो रीअकरेंस साइकिल है, मतलब वो कितने साल बाद रिपीट होता है। तो कुछ अर्थक्वेक्स का होता है कि वो 100 ईयर्स के बाद रिपीट हो रहे हैं, कुछ 200 के बाद, कुछ 500 के बाद। तो जो 500 या 200 के बाद जो बड़े अर्थक्वेक हैं, तो हो सकता है हमारे किसी के एक लाइफ टाइम में वो ना हो, मगर जब वो होंगे तो वो बहुत तबाही मचाएंगे। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि वहीं हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। जो 1 या जो 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक होते हैं ना, उसको हम फील नहीं करते। जैसे 4 तक हम फील करते हैं, मगर 1 या 2 या 3 के जो छोटे अर्थक्वेक होते हैं ना, वो लाखों के हिसाब से आते हैं साल में, वो हमें पता ही नहीं चलता, उसको हम फील नहीं करते एक्चुअल में। जो हमारे अर्थक्वेक 4, 5, 6, 7 जो बड़े मैग्नीट्यूड के होते हैं, उन्हीं को हम फील करते हैं, वही डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। जैसे 7, 8 तो बहुत ज्यादा हो गया, 8, 9 तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना। तो जो छोटे मैग्नीट्यूड के तो लाखों अर्थक्वेक्स आते हैं, और उनको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, उनका हमें पता भी होता है कि कहाँ पे आ रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वहाँ पे तो हमें पता भी होता है। पर ये कहना कि छोटे आ रहे हैं तो बड़े नहीं आएंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर हम अर्थक्वेक्स की बात करें तो कहाँ तक है टेक्नोलॉजी इसमें? अर्थक्वेक का देखिए, अर्थक्वेक का ये बताना कि कहाँ पे जमीन के नीचे वो कब आएगा, वो टाइम कौन सा होगा, मैग्नीट्यूड, ये अभी तक कोई नहीं कर पाया है। मगर हाँ, अर्थक्वेक आने से पहले जैसे मान लीजिए मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो उसके लिए अर्थक्वेक मतलब अर्ली वार्निंग रहता है कि वो एक पी वेव आती है, जैसे वो हिट करेगी मेट्रो, तो मेट्रो ट्रेन बंद हो जाएगी। उस तरह के सिस्टम्स बना दिए गए हैं हमने, उस तरह के सिस्टम्स बन गए। बट उसका वो अर्थक्वेक और अर्थक्वेक आने से जब डिस्ट्रक्शन की जो वेव आती है, उसके बीच में मेट्रो को रोक देते हैं। तो वो सेंसर्स हैं जो अर्थक्वेक आने के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। उससे पहले नहीं हम बता सकते कि जमीन के नीचे, क्योंकि 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर कहाँ पे, कब, किस टाइम पे भूकंप आएगा, ये बता पाना अभी मुश्किल है। असेस करना चाहें कि अर्थक्वेक आ रहा है अभी? देखिए वो उसके लिए मतलब एक टेक्निक होती है जिसमें हम परमानेंट जीपीएस स्टेशन जो है वो डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज के अक्रॉस लगा देते हैं। जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, फॉल्ट होते हैं, तो फॉल्ट में जब भी मूवमेंट होता है तब एक भूकंप आता है। तो हम क्या करते हैं कि इधर भी फॉल्ट के इधर भी एक परमानेंट जीपीएस स्टेशन लगा दिया और दूसरी तरफ भी परमानेंट जीपीएस स्टेशन लगा दिया। अगर उस फॉल्ट में काफी टाइम तक हम देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो फॉल्ट जो है बहुत सारा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जैसे मतलब बहुत सालों से मान लीजिए मूवमेंट नहीं है, तो एकदम से वो रिलीज करेगा। तो एकदम से रिलीज करेगा, इसका मतलब वहां बड़ा भूकंप आएगा। अगर उस फॉल्ट में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो अब चांसेस ऐसे हैं कि उसके अलोंग बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमने IIT कानपुर के साथ हमने इस रीजन में 14-15 हिमाचल में ऐसे बहुत सारे परमानेंट जीपीएस स्टेशन लगा रखे हैं, और उनका डेटा बेसिकली हम एनालाइज कर रहे हैं, यही देखने के लिए कि कौन कौन से जो बड़े बड़े फॉल्ट हैं वो एक्टिवेटेड हैं या लॉक्ड हैं। उसको हम लॉक्ड या लॉक्ड बोलते हैं कि लॉक्ड जोन है या अनलॉक्ड जोन है। तो उस तरह से भी उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में, नेपाल में, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे एरियाज को कैटेगराइज किया है कि ये सारे एरियाज जो हैं ये ज्यादा प्रोन है, ये कम प्रोन है अर्थक्वेक के लिए? जो बेसिक होता क्या है कि जो जितनी भी माउंटेन बेल्ट हैं, जैसे अल्पाइन हिमालयन माउंटेन बेल्ट है, तो इसमें क्या है कि प्लेट्स का मोशन जो है, प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं, तो वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करना ही पड़ता है, क्योंकि प्लेट्स मूव कर रही हैं। अगर हम प्लेट्स का चलना रोक दें तो भूकंप आने रुक जाएंगे, पर हम ऐसा कर ही नहीं सकते। और इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में पूरा हिमालयन बेल्ट जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है ना, और उसका हमने इंडिया में 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। और दूसरी जो स्टेट जो जहाँ पे मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आते हैं इंडिया में, वो है गुजरात। जिसे आपको पता होगा भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, उसका डिस्टेंस कितना है सिटी से, किस तरह के उस पर भूकंप आ सकते हैं, कितने साल के बाद आएंगे। जैसे चंडीगढ़ के पास भी एक फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो कि यहाँ से हार्डली 2-3-4 किलोमीटर होगा, जो सुखना लेक के बिल्कुल जो सामने वाली पहाड़ी है उसके नीचे से निकलता है। तो ये भी बहुत लंबा फॉल्ट है। ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं हिमालयस में, जिसके अलॉन्ग मतलब जो आगे का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकली वो लॉक्ड है। और MCT के पास जो है एक वहां पे बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं। तो लॉक्ड जोन है और पीछे का अनलॉक्ड जोन है। सारे एरियाज की, जैसे आप बोल रहे हैं चंडीगढ़ के नजदीक भी आपने मैपिंग की हुई है, हिमाचल में भी, ये साइंटिफिकली कैसे किया हुआ है? इसमें सर हम बहुत सारा जो रिमोट सेंसिंग डेटा होता है, सैटेलाइट का डेटा होता है हाई रेजोल्यूशन, जो कि यहाँ पे ये सैटेलाइट डेटा लगा हुआ है। तो इस डेटा पे ऊपर हम पहले एनालिसिस करते हैं और इसको देखते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट लाइन है। तो पहले उसको रिमोट सेंसिंग से हम मैप के ऊपर लगा लेते हैं, और उसके बाद हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। और फिर फील्ड इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा हम एक JCB ले जाते हैं
और वहाँ पे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चलाएंगे, टोटल स्टेशन चलाते हैं और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंच बनाते हैं। ट्रेंच मतलब एक खड्डा बनाते हैं और उस खड्डे में से फिर मिट्टी के सैंपल निकालते हैं और उन मिट्टी को सैंपल्स को हम फिर एक मशीन होता है उसमें डाल के हम उसका डेट करते हैं कि कितने साल पहले यहाँ भूकंप आया था। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितने साल पहले यहाँ भूकंप आया था और उसका मैग्नीट्यूड क्या था। वो हम ट्राई करते हैं कि उसको कंस्ट्रेन करें, मतलब उसको हम थोड़ा सा और समझें कि किस तरह का वो बिहेवियर है वहाँ पे फॉल्ट का। लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे ये अर्थक्वेक आया, ये अफगानिस्तान में इसका सेंटर था, मोस्टली हिंदू कुश रीजन में आया, तो हम क्या ये मान के चलें कि सारी की सारी जो हिमालयन बेल्ट है स्टार्ट करें तो ये सारी की सारी प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया की जो सारी बेल्ट है? देखिए, भूकंप तो आने ही आने हैं। अगर भूकंप से नुकसान तब होता है जब बिल्डिंग हमारी कोलैप्स कर जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम स्टेप उठा सकते हैं, अपनी जो बिल्डिंग जो हम घर बना रहे हैं उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं। अब जापान में हर रोज अर्थक्वेक्स आते हैं, मगर उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग हिल भी रही है, मान लीजिए उसमें साइड वाइज मोशन हो भी रहा है, तब भी वो नहीं गिरती, क्योंकि उनके जो इंजीनियर्स हैं, जो आपके सिविल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उनके पिलर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर उसमें वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है तब भी वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग का हम डिजाइन ऐसा बनाएं कि अर्थक्वेक आते रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जितने भी हमारे मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, डैम्स हैं, टनल्स हैं या और भी जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। क्योंकि अगर भूकंप को तो हम नहीं रोक पाएंगे, मगर हम अपनी बिल्डिंग को तो ऐसा बना सकते हैं ना कि वो नुकसान ना हो भूकंप आने के टाइम पे। आज की डेट में अगर बात करें इंडिया की, तो आप जरूर ये स्टडी करते होंगे कि कितने स्ट्रक्चर जो हैं, कहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जो आर्किटेक्चर है वो जो है वो अडॉप्ट हो रहा है। देखिए, इंडिया में बहुत सारी स्टडीज गवर्नमेंट करवा रही है, जैसे स्मार्ट सिटीज हैं, उनका माइक्रो साइस्मिक जोनेशन होता है, एक मैप बनाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो 30 मीटर का जो सॉइल स्ट्रेटा है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो भूकंप के टाइम पे कैसे बिहेव करेंगी। तो उसकी भी स्टडीज हो रही हैं, काफी जगह पे इंडिया में हो रही हैं। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि उसमें हम पूरे एक्टिव फॉल्ट्स को मैप कर रहे हैं हिमालयन रीजन के नेपाल तक। तो उसमें वो सारे के सारे फॉल्ट्स हमने मैप कर लिए हैं और जल्दी ही वो डिजिटाइज होके ऑनलाइन आ जाएंगे, पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे। तो उसमें सभी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे, जैसे पिंजौर गार्डन है आपका या कोई भी एरिया है, कि कहाँ कहाँ से एक्टिव फॉल्ट है या कौन कौन से एक्टिव फॉल्ट मूवमेंट जहाँ हो रहा है, तो वो जगहें उसमें दिखेंगी आपको, गूगल पे आप देख पाएंगे। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।